हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर 4 हीट। एंड आई होप कि जो मैंने आपको पहली वीडियो सेंड की थी वो आपने अच्छे से समझ ली होगी। उसे समझने के बाद चलिए हम पार्ट 2 पे आते हैं। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर एंड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। Now let's start part 2. Laboratory thermometer. Laboratory thermometer क्या है? It is used in laboratories for measuring temperature of common object. हमने पहले भी आपको बताया था कि लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम कहाँ यूज़ करते हैं। हम इसको यूज़ करते हैं अपने स्कूल के जो साइंस लैब है, फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब है। तो it is generally used in your laboratories for measuring temperature of common object. Next, the range of thermometer is generally from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. ऐसा क्यों होता है? हमने तो पहले देखा था, if you remember, the range of clinical thermometer is in between 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. but laboratory thermometer की रेंज इतनी ज़्यादा क्यों होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे लैब में बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं जिसकी हमें रीडिंग लेनी होती है। वो टेम्परेचर, वो सब्सटेंस का टेम्परेचर हाई भी हो सकता है, कूल भी हो सकता है। इसलिए इसकी रेंज -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ताकि हम अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग उसकी रीडिंग लेने में हमें प्रॉब्लम ना हो। The next point है the temperature must read while the thermometer is in contact with the substance. This is very important line कि जो टेम्परेचर हम ले रहे हैं क्लिनिकल थर्मामीटर में, आपने देखा था कि हमने टंग के नीचे क्लिनिकल थर्मामीटर रखा, देन उसको निकाला, उसके बाद हम उसकी रीडिंग ले सकते थे। पर यहाँ पे क्या है कि जब हम रीडिंग ले रहे हैं, while taking the reading, the thermometer is in contact with the solution or substance, otherwise your reading is wrong. Now how to read a laboratory thermometer. हम laboratory thermometer की reading कैसे लेते हैं? Now let us see. Take some hot water in a beaker. Next, dip the thermometer in water. Then keep in mind that bulb is immersed in water but does not touch the bottom or the side of the container. As I told earlier, it is very important that the thermometer is in contact with the solution without touching the bottom or any part of the container or vessel. Now hold the thermometer vertically. It is also noted that when we hold the thermometer while taking the reading, it should be vertical. Now observe the movement of mercury in the thermometer. Wait till the mercury thread becomes steady. Now you can take the reading of the thermometer. Here are some precautions in using laboratory thermometer. First, the thermometer should be kept upright, not tilted while taking reading. Next, bulb should be surrounded from all sides by the substance of which the thermometer is to be measured. Next, the bulb should not touch the surface of the container. As I told you earlier that the bulb of the thermometer does not in contact with the any part of the container, otherwise your reading will be wrong. Next, take reading while the thermometer is still in touch with the substance. ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब हम रीडिंग ले रहे हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर से, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन और सब्सटेंस जिसकी भी हम रीडिंग ले रहे हैं, अदरवाइज रीडिंग क्या होगी? रॉन्ग होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंग प्रेजेंट नहीं होता है,
और किंग प्रेजेंट नहीं होने के कारण अगर हम थर्मामीटर को रिमूव करके रीडिंग लेंगे तो हमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से जो मरकरी का लेवल है वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो हमें रीडिंग सही नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट होल्ड थर्मामीटर बाय इट्स बल्ब। ये तो दोनों में एप्लीकेबल है, क्लिनिकल में भी और लेबोरेटरी में भी, कि हमें जो थर्मामीटर है उसको बल्ब से होल्ड नहीं करना है। और द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ ऑल्सो कॉमन इन बोथ केसेस, हैंडल इट केयरफुली। Now it is very important while taking the reading of the thermometer is still in touch with the substance whose temperature is being measured. ऐसा क्यों होता है? If you take out the laboratory thermometer from hot water or any given substance, the level of the mercury begins to fall. जो मरकरी का लेवल है, जैसे ही आप थर्मामीटर को सॉल्यूशन से या वाटर से बाहर निकालते हो, जो मरकरी का लेवल है वो क्या हो जाएगा, इट विल फॉल डाउन। वाई? बिकॉज देयर वेर नो किंग प्रेजेंट। दैट्स वाई द टेम्परेचर मस्ट बी रीड while the thermometer is in water. This is the reason that's why laboratory thermometer is not used for measuring body temperature. ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही आप थर्मामीटर को अपनी बॉडी से बाहर निकालोगे या अपने माउथ से बाहर निकालोगे, द लेवल ऑफ मर्करी विल फॉल, सो इट विल प्रोवाइड ए रॉन्ग टेम्परेचर रीडिंग। तो अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या डिफरेंस है। तो here I mention some points which shows the difference between clinical and laboratory थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर की अगर रेंज की बात करें तो क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज है, इट एग्जिस्ट बिटवीन 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज इन लेबोरेटरी थर्मामीटर इसकी जो रेंज है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच लाई करती है। सेकेंड जो मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच, यूज्ड टू मेज़र बॉडी टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है उसको हम बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, वेयर एज लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ हम किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें किंग प्रेजेंट होता है, जो कि मरकरी के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, और लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंग प्रेजेंट नहीं होता है। Apart from clinical thermometer and laboratory thermometer, there is another type of thermometer which is available in market, that is digital thermometer. Now that is digital thermometer. तो डिजिटल थर्मामीटर हम जनरली प्रीफर करते हैं आजकल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा कि जो हमारे पास लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं इसमें मरकरी होता है, और मरकरी क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसको डिस्पोज करना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, पॉइजनस है ना। तो अगर थर्मामीटर टूट जाता है तो मरकरी को डिस्पोज करना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। दीज डेज डिजिटल थर्मामीटर आर अवेलेबल विच आर वेरी सेफ एंड ईजी टू यूज़। इसको हम अपने टंग के नीचे रखते हैं और इसमें ऑटोमेटिक इसको ऑन किया, और ऑन करने के बाद 1 से 2 मिनट के बाद इसमें एक बीप होती है। बीप के बाद आप इसमें अपना जो भी बॉडी टेम्परेचर है वो ईजिली देख सकते हो। एंड नेक्स्ट, डिजिटल थर्मामीटर डू नॉट यूज़ मरकरी, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें मरकरी यूज़ नहीं होता है, विच इज़ वेरी सेफ फॉर। नेक्स्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। वेदर रिपोर्ट्स में देखते हैं कि आज दिल्ली में मैक्सिमम टेम्परेचर इतना था, मिनिमम इतना था, या फिर कोलकाता में मैक्सिमम इतना गया टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर इतना गया। तो वो जो आपका टेम्परेचर मेज़र करते हैं थर्मामीटर दिल्ली का, हर सिटी में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा, मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा,
उसे हम कहते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। ओके, ऑल राइट। नाउ अभी तक हमने बात की हॉटनेस की, कोल्डनेस की, डिग्री ऑफ हॉटनेस की, डिग्री ऑफ कोल्डनेस की। डिग्री ऑफ हॉटनेस को हम कैसे मेज़र करते हैं, डिग्री ऑफ कोल्डनेस को हम कैसे मेज़र करते हैं। टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को थर्मामीटर से मेज़र किया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर। इन सब को कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन हैं एंड ऑल। नाउ वी विल डिस्कस ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट में क्या होता है कि जैसे आप इसके नाम में देख रहे हो कि हीट का ट्रांसफ़र, ये बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ट्रांसफ़र होता है, कोई भी बॉडी से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कोई भी चीज़ जब ट्रांसफ़र होती है तो हमेशा उनके बीच एक डिफरेंस होना चाहिए। वो डिफरेंस मैक्सिमम मिनिमम का हो सकता है, हॉट कोल्ड का हो सकता है, हाई लो का हो सकता है। तो जो फ्लो है, जो ट्रांसफ़र होगा वो कब पॉसिबल होगा, जब उनके बीच क्या हो, डिफरेंस हो। और डिफरेंस, अगर हम टेम्परेचर पढ़ रहे हैं तो डिफरेंस की अगर हम बात करें तो दो ऑब्जेक्ट के बीच कैसा डिफरेंस होना चाहिए। एक बॉडी का टेम्परेचर हॉट होना चाहिए और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए। देन ट्रांसफ़र ऑफ हीट विल टेक प्लेस। तो चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे साथ जनरली ऐसा होता है कि जब मैं पूजा करने जाती हूँ तो जब मैंने अगरबत्ती ली तो अगरबत्ती में क्या होता है कि 2 अगरबत्ती जल गई, एक नहीं जल पाती। जनरली आपने भी किया होगा। तो मैं क्या करती हूँ, जली हुई अगरबत्ती से जो अगरबत्ती नहीं जली हुई है उसको मैं उसके कांटेक्ट में लाती हूँ। थोड़ी देर बाद एक दूसरे के कांटेक्ट में लाने के बाद मैं ये देखती हूँ जो मेरी दूसरी अगरबत्ती है वो भी क्या होती है, उसमें भी हीट आ जाती है और वो भी क्या होती है, जल जाती है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक्चुअली में ये हो रहा है कि जो मेरे पास अगरबत्ती थी जली हुई थी उसके पास हीट थी और उस हीट के कांटेक्ट में जो अगरबत्ती जली हुई नहीं थी उसके कांटेक्ट में आई तो हीट का ट्रांसफ़र हुआ और हीट का ट्रांसफ़र हुआ तो हीट सेकेंड अगरबत्ती में भी पहुंच गई। उसने हॉटर बॉडी से हीट ट्रांसफ़र होके उस ऑब्जेक्ट में चली गई, कोल्डर बॉडी में। तो यहाँ पे आपको क्या फिनोमिना देखने मिलेगा, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रही है। यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट भी मेंशन किया है कि व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट विल रीच सेम टेम्परेचर ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज स्टॉप। एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो इस केस में क्या होगा, दोनों के बीच कोई हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है, सेम है। नाउ नेक्स्ट इज मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट consists 3 parts. First, conduction. Conduction generally occurs in solid. Next, convection. Convection takes place generally in liquid and gases. And third is radiation. Radiation do not require any medium. That is, it does not require solid, liquid or gases. Now let's discuss conduction. कंडक्शन क्या प्रोसेस होती है। एक्चुअली कंडक्शन जो है इसमें एक टर्म आ रहा है कंडक्ट मतलब किससे मिलके बना हुआ, कंडक्टर से। तो जो भी कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर में मेटल, सारे जितने मेटल आ गए उसमें कंडक्शन प्रोसेस होती है। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो किस में जनरली होता है, वो सॉलिड में होता है। तो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर व्हेन 2 ऑब्जेक्ट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, जो कंडक्शन में ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है ये कब होती है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में हो एंड हॉटर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर पार्ट। तो अब यहाँ पे एक फर्स्ट डायग्राम में देखिए, यहाँ पे गैस पे क्या रखा हुआ है, पैन रखा हुआ है। अब यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट क्या है, एक दूसरे से कांटेक्ट में है। गैस पे रखा हुआ है, उससे पैन को हीट मिल रही है। अब हीट मिल रही है तो कंडक्शन में क्या है, मेटल है। वो जो पैन है वो क्या है, कंडक्टर है। और कंडक्टर जब उसको हीट मिल रही है तो वो जो है पैन आपका गर्म हो रहा है
और गर्म होने की वजह से हम उसमें क्या कर पा रहे हैं, कुक कर पा रहे हैं। तो इसमें हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। कैसे हो रहा है कि जब आपने फ्लेम ऑन किया तो सबसे पहले उसका बॉटम गर्म होगा। बॉटम गर्म होने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो पूरा पैन गर्म हो जाता है। और पैन गर्म होने के बाद अगर आपने उसमें कुछ और भी यूटेंसिल्स या कुछ स्पून वगैरह डाल दिया है तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी गर्म हो जाता है। तो सेकेंड डायग्राम को देखिए, उससे आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा। यहाँ सेकेंड डायग्राम में आपने क्या लिया है, एक मेटल रॉड ली है। मेटल रॉड को आपने कहीं फिक्स कर दिया है। अब उस मेटल रॉड में कुछ डिस्टेंस में आपने वैक्स दैट इज़ मोमबत्ती लगा चिपकाई हुई है और एक एंड से आपने वहाँ पे फ्लेम दिया, उसको कैंडल का फ्लेम दे दिया है। अब क्या होगा, आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि जो आपकी मेटल रॉड है उसमें जो वैक्स लगी हुई है, पहले जो सबसे नियरेस्ट है ना, कैंडल को जो सबसे नियरेस्ट है वैक्स, वो मेल्ट होकर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद जो सेकंड वैक्स है वो गिरने शुरू हो जाएगी। फिर जो थर्ड डिस्टेंस पे लगी हुई है वो गिरना शुरू हो जाएगी। मतलब हीट ट्रांसफ़र हो रही है। इसमें आप इजीली देख पा रहे हो कि जो हीट है कंडक्टर में या मेटल में, वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है, तो वहाँ से हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में हीट ट्रांसफ़र हो रही है। अब यहाँ पे दो डायग्राम दी हुई हैं। फर्स्ट डायग्राम को अगर देखें तो हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट कप ऑफ टी टू स्पून। अब जो चाय है वो क्या है, गर्म है। तो चाय गर्म है तो उसमें जो आपने मेटल स्पून डाली है वो भी गर्म होगी। धीरे धीरे उसका स्टार्टिंग पार्ट गर्म होगा, फिर धीरे धीरे उस स्पून के टॉप तक उसको हीट मिलेगी और टॉप भी उसका क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जनरली आपने किचन में भी देखा हो कि अगर आप कुछ पैन में फ्राई कर रहे हो और पैन में कोई स्पून आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और जनरल फिर थोड़ी देर बाद आप जब उसी स्पून से उस पैन में रखा हुआ खाना अगर चलाने की कोशिश करते हो तो आपका हाथ जल जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे पैन और स्पून एक दूसरे के कांटेक्ट में है और हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। कहाँ से, पैन से स्पून में। तो जब आप स्पून का एंड भी टच करते हो तो वो क्या हो गया होता है, वहाँ तक हीट पहुँच गई होती है, जिसकी वजह से आपको स्पून गर्म लगता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। तो ये अभी आप साइंस 7th क्लास पढ़ रहे हो, 8th में भी पढ़ोगे, 9th में भी पढ़ोगे, 10th में भी पढ़ोगे। तो ये आपका बेसिक लर्निंग फेज चल रहा है कंडक्टर और इंसुलेटर के। तो इसमें आप बहुत स्मॉल पोर्शन में कंडक्टर और इंसुलेटर को समझोगे। ऐसे जैसे जब से आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो उसको डिटेल्स में पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे एज अ बेसिक अगर हम जाएँ तो कंडक्टर आर दोज मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। उसी तरह अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जो हीट को अलाउ नहीं करते हैं और उसको हम पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक। तो यहाँ पे हम कंडक्टर और इंसुलेटर के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट डायग्राम जो दिया है इलेक्ट्रिक आयरन का, उसमें अगर आप देख रहे हो तो इलेक्ट्रिक आयरन सबके घरों में है। इलेक्ट्रिक आयरन के ऊपर एक प्लास्टिक कोटिंग है जिसको हम होल्ड करके अपने घर के कपड़े आयरन करते हैं। तो आपने देखा होगा कि प्रेस का जो आयरन का जो बेस है वो तो बहुत गर्म होता है, पर जिससे हमने उसको होल्ड किया है, जो जहाँ पे प्लास्टिक लगी होती है, वो गर्म नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है और वो हीट को अलाउ नहीं करती है। इसी तरह किचन में जब आप काम कर रहे होते या अपनी मदर को देखा होगा काम करते हुए, तो जो भी स्पून होते हैं वो उसके हैंडल में प्लास्टिक लगा होता है या वुडन लगा होता है। यहाँ पे देखिए जो पैन दिया हुआ है इसमें आपका प्लास्टिक लगा हुआ होता है। अगर ये प्लास्टिक सपोज आपने रिमूव कर दिया या बाय डिफ़ॉल्ट टूट गया, अब आप इसको होल्ड करके दिखाओ, जब ये गर्म है आप होल्ड नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रहा है, बट हमने क्या कर दिया, वहाँ पे
ऐसा सब्सटेंस लगा दिया है जो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता, दैट इज़ प्लास्टिक। और वुड भी लगा सकते हैं क्योंकि वुड इज़ ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन क्या होता है उसको समझने से पहले चलिए हम डे टू डे लाइफ में जो हम एग्जाम्पल है उसको समझते हैं। विंटर में आप जनरली सबके घरों में इमल्शन रॉड है। इमल्शन रॉड से आप क्या करते हो, पानी गर्म करते हो। तो जब आपने इमल्शन रॉड बकेट में डाला, बकेट में पानी है, आपने ऑन किया, तो क्या होता है कि आपने 2 मिनट बाद क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, बंद करने के बाद जब आपने रिमूव किया तो ऊपर का जो पानी है वो गर्म है, और जैसे ही आपने नीचे हाथ डाला वो क्या, पानी अभी भी ठंडा है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या आप बताओगे? ऐसा इसलिए होता है, चलिए हम उसको पहले समझते हैं। इस डायग्राम में देखिए हमने एक कंटेनर लिया है जिसमें वाटर है और नीचे से उसको क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। तो जब हीट मिल रही है लिक्विड और गैसेस को, तो क्या होंगे, हीट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे। वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं या गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड होने पे क्या होगा कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, लाइटर हो जाएंगे, और जो चीज़ लाइटर होगी वो क्या होगी, राइज करने लगेगी। तो सेम इस डायग्राम में देखिए कि बॉटम में फ्लास्क जो है उसके बॉटम में हीट मिल रही है। तो जो नीचे के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो, उसको हीट मिली तो जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड होंगे तो इट बिकम्स लाइटर, और लाइटर होने की वजह से क्या होगा, वो पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आ जाएंगे तो नीचे कौन से पार्टिकल्स रह गए, हैवी पार्टिकल। और हैवी पार्टिकल कौन से हुए, जिसका कोल्ड टेम्परेचर है, कोल्ड वाटर है। फिर वो कोल्ड वाटर जो है वो फायर के कांटेक्ट में आए, हीट के कांटेक्ट में आए, वो भी एक्सपेंड हुए, लाइटर हुए, देन इट विल राइज अप। तो ये फिनोमिना चलता है कन्वेक्शन में। हॉट वाटर एक्सपेंड, it become lighter, then rises up. Cold water, it is heavier, moves down. तो ये साइकिल चलती है कन्वेक्शन में। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी लिक्विड या गैसेस में जो भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हीट मिलती है तो वो एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड होने के बाद इट बिकम्स लाइटर, और लाइटर होने पे ये क्या होते हैं, राइजेस अप। तो ये जो फिनोमिना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में भी, क्योंकि इसको हम और भी यूज़ करने वाले हैं। अब सेम जो मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ पे देखिए कैंडल है, कैंडल के ऊपर अगर आपने अपना हाथ रखा तो क्या हो रहा है, आप क्या फील करोगे, आप हीट फील करोगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में एयर, ये जो कैंडल है इसके आसपास क्या होंगे, एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। एयर मॉलिक्यूल जब इस हीट के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे। एक्सपेंड होंगे तो क्या होगा, इट फील लाइटर, और लाइटर फील करेंगे तो क्या होगा, इट विल राइज अप। तो बाय यूजिंग दिस फिनोमिना यू कैन ऑल्सो फील द कन्वेक्शन। ऑलराइट, अब इसी मेथड से हम हॉट एयर बैलून को भी उड़ाते हैं। हॉट एयर बैलून में क्या होता है, फायर का एक सोर्स होता है। जब उस फायर के सोर्स को जलाया जाता है तो उसकी वजह से जितनी भी एयर है किसके अंदर, उस हॉट एयर बैलून के अंदर, वो क्या होती है, हॉट हो जाती है। और हॉट होगी तो क्या होगा, फिर वही प्रोसेस याद करो, हॉट होगी तो एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होगा तो क्या होंगे, उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, लाइटर हो जाएंगे, और लाइटर होंगे तो इट विल राइज अप। तो लाइटर होगी तो एयर ऊपर की तरफ मूव करेगी, और वही एयर बलून को एयर में उड़ा देती है। ऑलराइट, ये थे कन्वेक्शन के कुछ एग्जाम्पल। तो कन्वेक्शन की वजह से दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, जिसे हम कहते हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। नाउ लेट अस डिस्कस सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सी ब्रीज एंड व्हाट इज लैंड ब्रीज। मैंने यहाँ पे एक ऊपर में देखिए मैंने एक साइकिल बनाया हुआ है। तो पहले हम इसकी प्रोसेस को समझते हैं, देन उसके बाद आपको वो साइकिल समझ में आएगा। तो जो लैंड है उसकी ये प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो जल्दी से गर्म भी हो जाता है और जल्दी से ठंडा भी हो जाता है।
एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो डे टाइम की अगर हम बात करें तो डे टाइम में बहुत गर्मी पड़ रही है, तो क्या होगा, लैंड बहुत गर्म हो जाएगा एज़ कम्पेरेटिव टू वाटर। तो लैंड के अंदर की जो हवा है, लैंड के ऊपर की जो हवा है, इस डायग्राम फर्स्ट डायग्राम में अगर आप देख रहे हो तो वो भी क्या हो जाएगी, बहुत गर्म हो जाएगी। फिर वही प्रोसेस, अगर गर्म हो गई तो क्या होगा, एक्सपेंड करेगी, और एक्सपेंड करेगी तो क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगी। क्यों ऊपर की तरफ उठेगी, क्योंकि एक्सपेंड हो गया तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, लाइटर हो गए, लाइटर हो गए तो वो इट विल राइज अप। तो जैसे ही लैंड को ऊपर की तरफ उठती है तो वहाँ पे क्रिएट हो जाता है वैक्यूम। तो ये जो दो एरो मैंने ऊपर की तरफ बनाए हैं वो क्या हो गया, जो एयर मॉलिक्यूल थे किसके, लैंड के, वो ऊपर की तरफ हुए, और ऊपर की तरफ हुए तो क्या हो गया, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। और वैक्यूम को भरने के लिए सी की तरफ से हवाएं चलेंगी, फिर वो गर्म होंगी, फिर वो भी ऊपर की तरफ उठेंगी। तो ये एक साइकिल बनता है डे टाइम में, सॉरी। सिमिलरली अगर आप नाइट टाइम में देखो तो उसका अपोजिट होता है। क्या होता है, क्योंकि हमने कहा कि लैंड जल्दी गर्म भी हो जाती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो नाइट में लैंड क्या है, ठंडी होगी। गर्म क्या है, वाटर। वाटर गर्म है तो वाटर के ऊपर भी हवा क्या होगी, वो भी गर्म होगी। गर्म होगी तो एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड करेगी तो इट विल राइज अप। तो क्या होगा, यहाँ के वैक्यूम को भरने के लिए अब लैंड की तरफ से हवाएं चलेंगी, फिर वो गर्म होंगी, फिर वो क्या हो जाएंगी, ऊपर जाएंगी, फिर इस तरह यहाँ भी एक साइकिल बन जाएगी। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट मेंशन किए हैं, सी ब्रीज ड्यूरिंग डे और लैंड ब्रीज ड्यूरिंग नाइट, जो अभी हमने डिस्कस किया। इसको चाहो तो आप अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हो और वीडियो को पॉज करके एक बार रीड जरूर करो। नाउ ऑल राइट, द नेक्स्ट mode of transfer of heat is radiation. The transfer of heat by radiation does not require any medium. It can take place whether medium is present or not. All hot objects radiate heat and sunlight reaches us through radiation. चलिए रेडिएशन को हम इस डायग्राम से समझते हैं। ठंड में आप क्या यूज़ करते हो, हीटर यूज़ करते हो। तो हीटर में क्या होता है, आपका पूरा रूम क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। हीटर किसी भी डायरेक्शन में रखा हो तो वो क्या करता है, हीट रेडिएट करता है। इसी तरह ये मिल्क वाला जो एग्जांपल देख रहे हो, तो मिल्क क्या होगा, इसके आसपास, इसके सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, गर्म हो जाता है। यहाँ पे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए लिखा था कि रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। यहाँ पे दो कंटेनर दिए हुए हैं। फर्स्ट कंटेनर डार्क कलर कंटेनर है और दूसरा जो है लाइट कलर कंटेनर है। नाउ अब यहाँ पे आप बताओ कि अगर ये दोनों कंटेनर को आपने धूप में आधे घंटे के लिए रख दिया, सनलाइट में, अच्छी तेज़ धूप पड़ रही हो और आपने दोनों कंटेनर को ले जाके धूप में रख दिया। आफ्टर हाफ एन आवर आपने जब जाके देखा और दोनों का टेम्परेचर मेज़र किया, तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो डार्क कलर कंटेनर है, दैट इज़ ब्लैक, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और जो लाइट कंटेनर है उसका टेम्परेचर कम है। ऐसा क्यों हुआ, सोचिए। चलिए कोई नहीं, मैं बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। जो डार्क कलर होता है वो जो होता है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, इसलिए जो डार्क कलर कंटेनर था उसने जो सनलाइट से जो हीट आ रही थी उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब किया, और ज़्यादा एब्जॉर्ब करने से उसके अंदर का जो वाटर था उसको ज़्यादा हीट मिली और उसका टेम्परेचर ज़्यादा आया। उसी तरह दूसरे कंटेनर में क्या होता है, जो लाइट कलर कंटेनर है, लाइट कलर कंटेनर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट। लाइट कलर कंटेनर क्या करेगा, जो हीट आ रही है सनलाइट से वो क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए आप देखते हो कि जनरली समर्स में हम लाइट कलर के क्लोथ पहनते हैं। नाउ इन समर वी प्रीफर लाइट कलर क्लोथ एंड इन विंटर वी यूजली वियर डार्क कलर क्लोथ। ऐसा क्यों होता है, अगर आप सबको आंसर्स पता हैं तो बोलिए। चलिए, जो डार्क कलर के क्लोथ होते हैं वो क्या होते हैं, हमने अभी बात की कि वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए
विंटर्स में हम क्या करते हैं, डार्क कलर के क्लोथ पहनते हैं, और समर में हम क्या प्रीफर करते हैं, लाइट कलर के क्लोथ। क्यों? क्योंकि रीज़न मैंने आपको बताया कि लाइट कलर क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं एंड वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन समर। नाउ हेयर वूल इन विंटर, वाई वी प्रीफर वूल इन विंटर? तो वूल इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो वूल के फाइबर होते हैं वो क्या करते हैं, वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं, और पता है कि एयर क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो जो एयर है वो क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, दैट्स वाई वी फील वार्म। इसी तरह we prefer cotton in summer because cotton is very thin fiber and cannot trap air, thus it cannot prevent loss of heat from our body, thus cotton clothes are worn in summer month. I hope आपको समझ में आ गया होगा कि why we prefer wool in winter and cotton in summer. So this is all about today's class and heat part 2 chapter. If you have still any doubt, go to the comment section and ask your doubt without hesitation. And if you like the video, then do like, share and subscribe my channel, that is Higgs Boson Classes. Thank you.